नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। समाचार सड़क देखने वाले सारे दर्शकों का रघुराम शर्मा की ओर से अभिनंदन। हमारा यह साप्ताहिक प्रसारण सड़कों से जुड़ी तमाम खबरों को आप तक लाता रहेगा। सड़क चाहे शहर के हों, गांव के या फिर हाईवे, सड़क से जुड़े हुए गाड़ियों, सड़क सुरक्षा संबंधी बातों और ढाबों, होटलों, खान पान की जगहों और टूरिस्ट स्पॉटों का हम जिक्र करते रहेंगे। सड़क है तो गाड़ियां हैं, गाड़ियां हैं तो फिर ड्राइवर भी हैं, और इनमें अधिकांश नंबर ट्रक ड्राइवरों की है। अतः हमारे प्रसारण का एक मुख्य हिस्सा हमारे ड्राइवर भाई भी होंगे। हम उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और उनकी जीवन शैली को आपके सामने रखेंगे। उनके हुनर, उनके कौशल और उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों को भी हम आगे लाएंगे। यही नहीं, हमारे कार्यक्रम में बीच बीच में मनोरंजन का पिटारा भी होगा। तो यह रहा हमारे साप्ताहिक प्रसारण समाचार सड़क के बारे में। तो अब आइए चलते हैं हमारे आज के इस प्रसारण की ओर। थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। युवा श्री पीयूष लद्धा ने हाल ही में अपनी कंपनी शिवानी कैरियर्स के बेड़े का कमान संभाला है। आपने भारत में शिक्षा प्राप्त की और फिर विदेश में जाकर उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। हमारे साथी रमेश जी और मोहन सुब्रमण्यम जी के साथ एक लंबी बातचीत चली। इसमें श्री पीयूष ने अपने व्यापार संचालन और उनसे जुड़ी चुनौतियों के बारे में हमें बताया। इन चुनौतियों में एक खास मुद्दा था हाईवे के भ्रष्टाचार को लेकर। यही नहीं, ड्राइवर प्रबंधन और कोविड के समय उनके अपने अनुभव को हमारे साथ बांटा। इस लंबी बातचीत का पहला भाग हम आज प्रसारित करेंगे। Yes, my grandfather used to work in a transport company as a munshi, and then he carved out his own way and started a parcel booking business, which my father and my joined. So now me and my younger brother are also involved in this business. So what's the grandfather's name? What's the father's name? Yes, sir. My grandfather's name is Shravan Kumar Ladda. Okay. So he started his business, I think, 40 years, 50 years back. And my father, who is Tribhuvan Kumar Ladda, and my uncle Hemant Kumar Ladda, they joined the business. So just give you a little idea about our business. We started as a part load company. We used to provide service from Indore to a particular route: Indore, Neemuch, Ratlam, Mandsaur. The route which goes towards, you can say, towards the Udaipur side, the same route from Indore to Udaipur. Yeah. So we started as a part load company, and slowly we diversified into full truckload as well. So currently we do have two arms. One of our company is Shivani Logistics, which deals with the part load business, and the other company is Shivani Carrier Private Limited, which deals with the full truckload business. What does it come again? The second company? Shivani Carriers Private Limited. Okay. What it does? So we do full truckload business, sir. So we are based out of Indore, headquarters at Indore. We have around 20 branches pan India, and we do work with a number of customers such as HUL, ITC, Tata companies. In Tata companies, we work with Tata Chemicals, Tata Consumer Goods, Tata BlueScope Steel, Dalmia Cement,
and a lot of auto parts companies as well. So we do provide them full truckload service. What is the fleet size? Current our fleet size is close to 150 vehicles. And this fleet size, it includes vehicles which are starting from 6-wheelers to 22-wheelers. आपका काफी you are an engineer by qualification. What you have understood the business of logistics from your seniors, or how is it? Ji Mohan ji, I did my bachelor's in industrial engineering from NIT Trichy, Tamil Nadu. So that was my first outing from away from home, I would say. And then I worked a couple, Trichy. Then I worked a couple of years with my own company, Shivani Cages Private Limited. And after that, I went to US to do a master's in business logistics engineering from Ohio State. Okay. It was a 3-semester course. After that, I worked with a couple of years on H-1B visa with one of the biggest food companies in US, looking after the procurement and the logistics department. And in 2015, I came back to India for good. तो आपको ज्यादातर logistics and movement of trucks in terms of carrying perishables, इसका आपको ज्यादा जो विनाश हो जाते हैं कार्गो, उसका knowledge ज्यादा होगा, I think, since you're saying that you work for a food company. So not exactly, I would say, perishables such as fruits and vegetables. In US, the movement which I used to look was of wheat and soybean meal. Okay. So that is a food item, yeah, but it's not as much perishable as you can say vegetables and the other items. Okay. ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादातर मैंने देखा है all transport companies टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रकिंग इंडस्ट्री को. बट मैं कई ऑफिसेस में जाता हूं और वो सुपरवाइजर जब भी लॉरी ड्राइवर से बात करता है, हाँ भाई तुम पहुंच गए करके ये सवाल जरूर पूछता है. 6 out of 10 supervisors that I interact and sit down in their office, the question he asks, हाँ भाई, हाँ सर मैं तो गेट में आ गया हूँ, गाड़ी अनलोड नहीं हो रहा है, अभी थोड़ी देर में अंदर ले लेंगे. जब 150, 250, 300 ट्रक्स एक ट्रांसपोर्ट ओनर के पास होता है, तो सुपरवाइजर को ये सवाल पूछने की क्यों जरूरत होती है in terms of a GPS technology and a VTS in place? It's what is my question. Out of curiosity I'm asking this. I don't know मेरा सवाल legitimate है या नहीं. नहीं सर मोहन जी, I mean बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने. पहले मतलब मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ करना चाहूंगा कि पहले जो GPS थे, that only used to give you the location of the vehicle. और that also doesn't used to be, I think, real time. अब जितने अब real time हुए हैं उतने पहले नहीं हुआ करते थे. But in the past 5-6 years, lots of good companies have come up and developed technology solutions for fleet owners such as. तो हम लोग जैसे for example we use Fleetex. हम लोग Fleetex का GPS tracking system use करते हैं. So over there इसमें हम लोग को ड्राइवर से पूछने की जरूरत नहीं कि तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, because what we have done is we have set up geo locations everywhere और हर एक जॉब को हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है. तो जैसे ही वो पॉइंट बी पहुंच जाएगा तो हमें जीपीएस में दिखा रहेगा कि ये पॉइंट बी पे खाली करने के लिए 5 घंटे से खड़ा हुआ है. बट द थिंग इज वी हैव टू डू इनपुट फ्रॉम आवर साइड. हमें वो इनपुट सिस्टम में डालना पड़ेगा तभी, हाँ फिजिकली सिस्टम की ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है. बट अभी भी मतलब जो मेजॉरिटी फ्लीट ओनर्स हैं वो ये लोग इस चीज को मोस्टली द एंट्रीज इज डन इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट या फिर नॉर्मल डायरी में एंट्रीज होती है. तो और उतना भी वो लोग उतना अवेयर नहीं अपने आप को करना चाहते कि अब इस टाइप के सॉल्यूशंस आ गए हैं जहाँ पे हम लोग खुद मतलब बिना ड्राइवर को फोन करें हम पता कर सकते हैं कि ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. सिस्टम देयर, टेक्नोलॉजी इज देयर, बट जस्ट मोर अवेयरनेस हैज टू बी देयर.
और उनको इस चीज को का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा करेक्ट, कि आप कि हम लोग बिना मतलब कम से कम कम्युनिकेशन में, यस, हम लोग ड्राइवर को पहले इतने सारे फोन आते हैं और हम लोग भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में उनको इतने फोन करेंगे बार बार, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भी परेशान हो जाता है। तो एक Okay. मिनिमल कम्युनिकेशन में उससे उससे सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ये भी हम लोगों को इंश्योर करना पड़ता है, करना चाहिए। पीयूष, आपके यहाँ अटैच गाड़ियां भी हैं? अच्छा पीयूष, सॉरी मोहन, आई एम जस्ट अटैच गाड़ियां सर हमारे, जी 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 रवि। या पीयूष जी, नो लाइक आपने कहा आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया है MIT ट्रिची से, क्योंकि मतलब लाइक कम से कम गया 7-8 सालों में मुझे मालूम पड़ा, मतलब बड़े बड़े MNC कंपनी जो भी 3PL 4PL है, उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियर को जितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस मिलता है उतना इंपॉर्टेंस इंडियन 3PL कंपनीज में नहीं मिलता है, MNC में मिलता है। अच्छा, आपका इसके बारे में क्या बोलना, क्या ख्याल है आपको? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत दिनों बड़ा समझता है इसका। ये सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मोस्टली जहाँ तक मतलब मैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज भी है और जहाँ तक मैंने अपने सीनियर्स को भी देखा है, मोस्ट ऑफ देम दे आर ईदर इन्वॉल्व इन दी ऑटो कंपनी ज्यादा जाते हैं या फिर डायरेक्ट इंडस्ट्रीज इनटू या फिर मैन्युफैक्चरिंग में। एंड these people they have knowledge of the system का नॉलेज काफी आ जाता है, प्रोसेसेस का नॉलेज काफी आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर को। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वही चीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर यूज, जो मैंने पढ़ा है मैं वही कहीं ना कहीं इसको मैं लॉजिस्टिक्स में कोशिश करता हूँ कि प्रोसेसेस डिफाइन करें और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को कम से कम करें, एरर्स कम से कम हो। अब ये चीज सर कि लॉजिस्टिक कंपनीज में इम्पोर्टेंस इतना नहीं मिलता है आपके नॉलेज के अनुसार, मतलब इसके बारे में तो सर मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों है। बट एक जो फायदा मुझे मिला है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके, जो कि प्रोसेस को आपको डिफाइन करना और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये काफी चीज मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिखाई है इन जनरल, मतलब not just in मतलब related to engineering, I would say it's in any workflow, be it finance or be it operations. अच्छा पीयूष, और एक सवाल है, आपने कहा आप USA में कुछ पढ़ा है, क्या कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? जी क्या आप कुछ लॉजिस्टिक्स, बिजनेस लॉजिस्टिक्स के बारे में कुछ बता रहे थे? कौन सा जी यूनिवर्सिटी में पढ़ा? कितना साल का कोर्स है ये? जी सर, तो सर ये बिजनेस लॉजिस्टिक्स इंजीनियरिंग कोर्स है इसका नाम का। Unfortunately, this course is no more offered by Ohio State University का कोर्स है ये, जो कि पिछले साल से डिसकंटिन्यू हुआ है। So this course was offered together by Integrated System Engineering, ISC है, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को वहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम इंजीनियरिंग कहा जाता है यूएस में। अच्छा, और बिजनेस, फिशर स्कूल ऑफ बिजनेस, फिशर स्कूल ऑफ बिजनेस, दैट इज द MBA स्कूल ऑफ ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों मिलके, इनके प्रोफेसर मिलके दे हैड डिजाइन्ड अ कोर्स बिजनेस लॉजिस्टिक्स। आई थिंक इट गॉट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2008 और इनने फिर 2018 में दे हैव डिसकंटिन्यूड विद दिस कोर्स। I mean, which year you तो हम लोग, जी आपने कौन सा साल में पढ़ा है उधर? सर मैंने करा था 2012 अगस्त में मैंने स्टार्ट हुआ था, और it was a 3 semester course, so it was over by 2013 December. Okay, I mean, tell me, how much of it, like whatever you learned there in US, how much of it is relevant? Okay, how much of you find it, like easy to implement in the Indian environment? By lots of people. So उस प्रोसेस को अगर आप यूएस में जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को आप पूरे सेम टू सेम अगर इंडिया की कॉपी करने की कोशिश करोगे तो ये कभी भी लागू नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको उसको ट्विक्स एंड टर्न्स करने पड़ते हैं, कोई सा भी प्रोसेस हुआ। आज जो मतलब आपको भी सर जान के, आपको तो खैर आपको अमेरिकन ट्रकिंग इंडस्ट्री के बारे में काफी होगा ही, बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बट ओवर देयर आल्सो दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग, दैट इज ड्राइवर शॉर्टेज। और second thing, the average age of the driver is on my side, जो कि इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। और थर्ड, वहां पे भी
हम लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी काफी होगी तो काफी टेक ड्रिवन होगा, बट दे यूज डायल ट्रक सर्विस, जो वहाँ का एक बड़ा सा लोड बोर्ड है, यू मे हैव हर्ड ऑफ इट ऑलरेडी, दैट दे आर स्टिल मोर डिपेंडेंट ऑन दीज, मतलब बस पे डिपेंडेंट वहाँ पे भी बहुत ज्यादा है कि फोन पे अभी भी वो लोग लोड लेते हैं. दिस इज ओनली बिकॉज द ड्राइवर्स द एवरेज इज मच हायर एंड दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी. तो अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि हम लोगों ने वहाँ पे जो क्या प्रोसेस हमने फॉलो करना कोशिश ट्राई करी है, बट उसको हमने जैसे एक ट्रांजिट टाइम होता है ओवर देयर, द ट्रांजिट टाइम इज डिफाइंड कि आपको मतलब शिकागो से अगर आपको मायामी जाना है तो आई थिंक प्रॉब्ली इट शुड बी 1500 माइल्स के आसपास होना चाहिए वो. तो वहाँ पे ट्रांजिट टाइम डिफाइंड है बिकॉज दे कैन ट्रैवल अप टू 600 600 माइल वो लोग चला लेते हैं दिन में. तो प्रॉब्ली 4 to 5 days they can reach and cover this much distance. और हम लोग ने हमारी कंपनी में डिफाइन किया कि चलो हम लोग भी रूट टू रूट एक ट्रांजिट टाइम डिफाइन करें. ओवर देयर एक जो बेसिक डिफरेंस है कि ओवर देयर द रोड्स आर सेम एवरीवेयर, बट हमारे इंडिया में दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग ने पहले इनिशियली जो करा हुआ था कि चलो हम लोग 400, 450, 500 किलोमीटर एक एवरेज डिफाइन करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और उसी के बेसिस पे हम लोग फिर इंसेंटिव्स भी चालू करेंगे किसी भी कंपनीज में किसी भी ड्राइवर को देने के लिए. बट देन वी हैव टू ट्विक इट अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रूट, बाय टॉकिंग विद द ड्राइवर्स. तो हर एक रूट को फिर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखना शुरू किया कि अगर सेम गाड़ी अगर झारखंड में जाएगी तो झारखंड में घाटी होने की वजह से, रोड होने की वजह से, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम गाड़ी जो गुजरात में चलती है वो झारखंड भी उतना ही चलेगी. तो कहीं ना कहीं इस चीज को कोई से भी प्रोसेस को आपको जमीन पे मतलब रह के उसको टुकड़े में देख तो हम चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम. आपको कैसा लगा? हर बार की तरह आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर वॉइस मैसेज द्वारा अपने विचार, अपने सुझावों को हम तक पहुंचाएं. आपको हमारा नंबर याद है ना? फिर से दोहराता हूं. हमारा नंबर है 9711544181 9711544181. तब तक के लिए रघुराम शर्मा को आज्ञा दीजिए. फिर मिलेंगे अगले रविवार को. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत, जय ड्राइवर. थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप. श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस. डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज.